Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 48 turn, and from this lecture, I am going to start your part B book, that is financial statement analysis. From this lecture, your part B book, the analysis of financial statement is starting, and I am starting the first chapter of this chapter. In this lecture, I am covering first chapter of part B, that is financial statement of companies. Topics to be covered in the lecture are meaning of financial statement, balance sheet, general instruction of preparing balance sheet, and explanation of equity and liabilities. These notes are covering in this lecture. Now come to meaning of financial statement. ये पार्ट बी की बुक है बेटा. मीट सबसे पहला चैप्टर इसका फाइनेंशियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बुक का नेम भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है. तो इसमें व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है हमें. तो what is financial statement? Financial statement are the end product of accounting process. They provide information about the profitability and financial position of the business. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोडक्ट है बेटा फाइनेंशियल प्रोसेस का. एंड ऑफ द ईयर में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो वो जो एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल स्टेट वो एंड प्रोडक्ट जो बनता है इट इज़ अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एज पर कंपनी सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, financial statement in relation to a company includes the following. In the financial statement 3-4 points are covered, that is balance sheet at the end of the financial year बनाई जाती है. Number 2 statement of profit and loss for the financial year. Number 3 cash flow statement for the financial year. और फिर इसके explanatory notes देते हैं. तो financial statement इसका मतलब is the end product of any accounting process. At the end of the year, whenever we are preparing balance sheet, whenever we are preparing cash flow statement and statement of profit and loss account, it is the part of financial statement. See nature of financial statement. The information in the financial statement is result of combination of recorded facts, recording of transactions on the basis of accounting conventions. जो नेचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, वो फैक्ट्स के बेसिस पर होता है और प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पर होते हैं. नाउ सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले प्रिपेयर होती है दैट इज़ बैलेंस शीट. What is balance sheet? It is a financial statement that summarizes company's equity, liabilities and assets at a specified point of time. ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर होता है. ये समराइज करता है इक्विटी, लाइबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी. दीज 3 पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल इक्विटी, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, शोज़ व्हाट द कंपनी ओव्स एंड व्हाट इट ओन्स. और ये इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हमें पता चल जाता है कि कंपनी के पास क्या लाइबिलिटीज़ हैं और कंपनी क्या ओन कर रही है, मतलब कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं और कंपनी व्हाट लाइबिलिटीज़ कंपनी इज़ हैविंग. बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज़ प्रिपेयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. पार्ट ए 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो है बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होती है फॉर्म की. द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज एज फॉलो. द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. बैलेंस शीट में सबसे पहले जो आपका आ जाता है दैट इज़ नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट उसका डेट आ जाती है. ठीक है. देन आपके जो है देयर आर 4 कॉलम्स. नंबर 1 पर्टिकुलर, नंबर 2 नोट नंबर, नंबर 3 figures at the end of current reporting year, number 4 figures at the end of previous reporting period. ठीक है. तो नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. नंबर फर्स्ट क्या है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है. इट्स फर्स्ट पार्ट इज शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल, reserve and surplus, money received against share warrants. The number 2 share application money pending allotment. नंबर 3 नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ठीक है. देन करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. इसका टोटल हो जाता है. देन इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल आ जाता है. देन नंबर 2 इज एसेट्स. Assets include non-current assets as well as current assets. Non-current assets में number 1 fixed assets, tangible assets, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development. B is non-current investment. C is deferred tax asset. ये आप शो नहीं होता है बैलेंस शीट में, इसको हम नीचे नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी. Then D is long-term loans and advances and E is other non-current assets. Number 2 is current assets, that is current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent,
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज एंड अदर करेंट एसेट्स। फिर दोनों का टोटल हो जाता है, लाइबिलिटीज़ का टोटल आपके एसेट्स के इक्वलाइज होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, मेक इट इन योर कॉपी ऑल्सो। नाउ सी द नेक्स्ट, फर्स्ट इज इक्विटी एंड बैलेंस शीट का जो फर्स्ट पार्ट आया था दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस लेक्चर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड इज टर्म्ड एज शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है और इसको हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। इट इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इक्विटी क्या है तुम्हारे, इक्विटी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, इट इज़ नोन एज शेयर होल्डर्स फंड। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये 3 आइटम्स आते हैं इसमें। देन लाइबिलिटीज़ मीन्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटीज़ टुवर्ड्स द आउटसाइडर। It is shown as non-current liabilities and current liabilities. Liabilities वो external liabilities हैं, liabilities towards the outsider, और इसको हम non-current liabilities and current liabilities में part divide करते हैं। Then number 1 is equity and liabilities का जो सबसे first part है that is shareholders fund. Shareholders fund includes 3 items. Number 1 share capital, number 2 reserve and surplus, and number 3 money received against share warrant. अब number 1 share capital. What is share capital? Share capital means amount received by the company against shares issued for subscription and also shares issued for consideration other than cash. वो अमाउंट जो कंपनी रिसीव कर रही है फॉर शेयर्स, जो सब्सक्रिप्शन में शेयर्स गए थे उसमें जो अमाउंट रिसीव हो रही है कंपनी को, जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है उसके बदले में जो उसको अमाउंट मिलती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। द पर्सन टू हुम शेयर्स आर अलॉटेड आर नोन एज शेयर होल्डर्स, और जिसको ये शेयर्स अलॉट करती है कंपनी वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर कैपिटल इंक्लूड बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल में दोनों आइटम्स आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनर्स कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज बोरोड कैपिटल। ठीक है। देन नंबर 2 इज डिटेल्स जो है आपके शेयर होल्डर्स फंड के डिटेल्स में आपके 3 आइटम शेयर होल्डर्स फंड के मेन पार्ट है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, नंबर 2 इश्यूड कैपिटल एंड नंबर 3 सब्सक्राइब कैपिटल। अब शेयर होल्डर्स फंड में नंबर 1 आता है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू फॉर सब्सक्रिप्शन। होल लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए लेकर आ रही है, इट इज़ नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। इट इज़ स्टार्टेड इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन, इसको हम मेमोरेंडम एसोसिएशन में शो करते हैं। और कंपनी के मतलब ये टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयर कैपिटल में। ये इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पार्ट में भी डिवाइडेड होता है। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है जिसको कंपनी शेयर कैपिटल के फॉर्म में इशू कर सकती है। Number 2 issued capital. Issued capital is that part of authorized capital which the company has issued for subscription up to the date of balance sheet. Issued capital वो कैपिटल है जो हर साल कंपनी इशू कर रही है अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन के लिए जो कंपनी इशू करती है जिसको शेयर होल्डर्स देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो वो शेयर कैपिटल जो कंपनी हर साल इशू कर रही है इट इज़ नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। वो हमारी कंपनी की क्या होती है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू शेयर कैपिटल की होती है जिससे कंपनी उससे कम जो है इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। नंबर 3 इज सब्सक्राइब कैपिटल। जब कंपनी शेयर्स को इशू कर देती है तो जो पब्लिक सब्सक्रिप्शंस के लिए शेयर्स लेती है जिसके लिए का पब्लिक पेमेंट करती है कंपनी को, इट इज़ नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। जिसको शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब करा है दैट पार्ट इज़ नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। ये इशूड कैपिटल का पार्ट है। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी वेदर इन कैश और काइंड एज सब्सक्राइब कैपिटल इज शोन एज शेयर कैपिटल ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। वो अमाउंट जो कंपनी रिसीव कर रही है एज सब्सक्राइब कैपिटल उसी को कंपनी फेस ऑफ द बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट के मेन पार्ट में शो करती है। ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल इज क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल क्या होता है, शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। सब्सक्राइब मतलब कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स दिया, उसको सब्सक्राइब भी करा और पेमेंट भी टोटल मिल गया उसका, दैट इज़ नोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। इसकी 2 कंडीशंस है। नंबर 1 व्हेन द कंपनी इज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी पूरे के पूरे नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की मिल जाती है कंपनी को। नंबर 2 द कंपनी हैज़ रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप, या कंपनी को जो है कॉल्ड अप अमाउंट रिसीव्ड हो जाती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। ठीक है। नंबर बी सब्सक्राइब बट नॉट फुली कॉल्ड अप, शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली कॉल्ड अप अंडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशन। इसके 2 सिचुएशन है बेटा। नंबर 1 व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड
द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट हैज़ नॉट रिसीव द अमाउंट। बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब जितना कंपनी ने कॉल्ड अप करा है उतनी अमाउंट कंपनी को रिसीव हो जा रही है। और नॉट कॉल्ड नॉट पेड अप का मतलब क्या होता है कंपनी का, कि कंपनी ने इशू तो करा है बट उसको अमाउंट रिसीव नहीं हुई, वन केस, या कंपनी ने सारा का सारा कॉल्ड अप ही नहीं करा है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये आपका शेयर कैपिटल के पार्ट है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेयर ऑथराइज कैपिटल, सब इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट न्यूमेरिकल्स इन माय नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मेक अ सेपरेट कॉपी ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको इसको पार्ट ए वाली उसमें नहीं करना है, पार्टनरशिप वाली कॉपी उसमें नहीं करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसकी एक सेपरेट पार्ट बी करके कॉपी बनाइए जिसमें आप इस चैप्टर से नोट्स स्टार्ट करिएगा। एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।